Good afternoon, everyone. Again, I'm back with my YouTube series, and here already we have started the chapter function, and in that chapter we were discussing about the user-defined functions with their properties. And my last two videos were based on the user-defined function with some properties. And today also, students, we'll start with one of the most important property, as you can see on the screen. And this property, or we can say that it is a kind of function which we are going to create, and this property is known as recursion, or we can say a type of function. User defined function की category है, that is a type of function which has some recursive property, which has some recursion property. So today that's all about this whole outline of this chapter, as you can see on the screen right now. So these all topics we are going to cover today. Interesting topic है, and some mathematical concept we have to follow while learning this recursion concept. So students, we'll start with this one. First of all, we will demonstrate this types of calling. In every of the modularity programming language, जहाँ पे मॉड्यूल्स का यूज़ होता है, जहाँ पे फंक्शंस का यूज़ होता है, there are two kinds of calling, internal calling and external calling. Now we'll see that what these are, what is the meaning of internal and external calling. So it will be better if I am going to demonstrate these kind of calling. तो उससे आपको clear होगा कि how the callings, even the callings of the user defined functions can be categorized. So I think student calling का मतलब आपको clear होगा that calling is what actually that we can make multiple functions in the same program, but it is of no use until we are not going to call that particular function. So the thing is that calling is mandatory in that particular program. Otherwise, simply wasting the time and effort while making these functions is of no use. So calling is important over there for running the respective function. So almost we have done this topic in my last videos about the calling function. So now we are going to categorize this calling, और इस कॉलिंग को कैटेगराइज करने के बाद हम एक प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे. क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्विच ओवर द पाइथन शेल एंड देन वी विल सी कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये वर्क करता है. सो नाउ स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉलिंग. Clear? So now we will start with this one, students. So ये हमारा first topic है. Right now I'm not going to start with the recursion, but just understand that why the recursion has been introduced in the programming languages. This is not a new topic actually. Python support recursion, but still there are various of the previous languages like C, C++, Java which also support this concept. लेकिन concept क्या है, कहाँ पे apply किया जाता है, इसका अपना एक significance है. Clear? So now we will start with this one. So first of all, I'm going to start with the external calling. So let's say we are having a function and the name of the function is compute. ठीक है? Now this function will do some task, and the task I'm going to define it over here, and that is print. It will print something on the screen, and that printing will be hello Python. Clear? Now here I'm going to define this one def main. Student, this property of main we have discussed in my last episode of the series of user defined function, and here we can call this function compute. Then here I'm going to call the main function. So that is a way to call the main function. Now student, अगर आप समझें इस concept को, this function compute is my module 1. ठीक है? आई थिंक इसको बार बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हम मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट है एंड वी आर फोकसिंग ऑन द मॉड्यूल्स. सो नाउ दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 1 एंड दैट इज आवर मॉड्यूल नंबर 2. ठीक है? नाउ जस्ट चेक इट आउट वन थिंग, विच मॉड्यूल हैज़ द स्टेटमेंट टू इन्वोक द मॉड्यूल नंबर 1. मतलब कौन सा मॉड्यूल पर हमने मॉड्यूल 1 को इन्वोक करने का स्टेटमेंट लिखा है. सो आई थिंक
this is the statement. Clear? This one. And where it is defined, ये कहाँ डिफाइन किया गया स्टूडेंट्स? That is defined in the मॉड्यूल नंबर 2. तो अगर आप फोकस करें तो मॉड्यूल नंबर 2 पे हमने मॉड्यूल नंबर 1 का इन्वोकेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कॉलिंग स्टेटमेंट. So we can say one thing कि मॉड्यूल नंबर 1 is different, मॉड्यूल नंबर 2 is different. But unique thing about these two modules are that these two modules belong to a single program. ठीक है? So now just focus one thing. When one module invokes, when one module mention a function calling a statement of some another module, ठीक है? तो that particular calling, अगर आप चेक करें सिंटेक्स को, ये एक कॉलिंग है, ये कॉलिंग है, कॉलिंग द फंक्शन कंप्यूट और कॉलिंग द मॉड्यूल नंबर 1. तो ये जो इस तरह की कॉलिंग है, दिस काइंड ऑफ कॉलिंग इज नोन एज एक्सटर्नल कॉलिंग. क्लियर? आई एम सेइंग कि ये एक एक्सटर्नल कॉलिंग है. नाउ व्हाई इट इज एक्सटर्नल कॉलिंग? बिकॉज वन मॉड्यूल हैज सम स्टेटमेंट टू इन्वोक द अनदर मॉड्यूल. तो एक्सटर्नली कॉलिंग हम कर रहे हैं. अगर आप चेक करें ये, यस, द नेम फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर कि एक्सटर्नल कॉलिंग होगा. और अभी तक व्हाट्सएवर प्रोग्राम वी हैव डन इन द फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उसमें हम सब एक्सटर्नल कॉलिंग का यूज़ करते हैं कि एक मॉड्यूल से हम दूसरे मॉड्यूल को इन्वोक करवाते हैं. फॉर सम आइदर सिंपली वी आर इन्वोकिंग, आइदर सिंपली वी आर पासिंग सम आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट पास करते हैं, इंटीजर पास करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक टास्क. तो इन दैट केस व्हाट दीज आर, कि ये एक तरह की एक्सटर्नल कॉलिंग है. So I think student ये आपको concept clear होगा कि that this one is external calling. Now there is one more concept of calling. There is one more classification of calling and this is known as the internal calling. ये एक internal calling होता है. Now we'll focus over here कि what is internal calling. Internal calling का मतलब शायद आपको clear हो गया होगा कि जब function अपने आप को when a single function or a module invoke itself. अब invoke itself का मतलब क्या है वो चेक करते हैं. देखिएगा, नाउ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज इट इज द एक्सटर्नल कॉलिंग. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ, कंप्यूट, नाउ जस्ट फोकस ओवर इट, कंप्यूट, और यहाँ पे इसको मैं अगर चेक करूँ, ये भी एक तरह का कॉलिंग स्टेटमेंट, जस्ट चेक इट आउट. दिस इज अगेन ए वे ऑफ टू कॉल द फंक्शन. भाई ये भी कॉलिंग कर रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट मॉड्यूल 2 के अंदर डेट मीन्स वर्ड कि ये एक्सटर्नल कॉलिंग है. लेकिन ये एक इस तरह की कॉलिंग है जो फंक्शन कंप्यूट के अंदर ही लिखी गई है, मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है. द फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ. क्लियर? सो दिस काइंड ऑफ कॉलिंग इज नोन एज द इंटरनल कॉलिंग. व्हेन अ फंक्शन इन्वोक इटसेल्फ, जब फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन का रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होता है, देन इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज द टाइप ऑफ इंटरनल कॉलिंग. तो अगर मैं स्टूडेंट स्टेप की बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम राइट नाउ एंड देन वी विल सी दैट हाउ द आंसर इज गोइंग टू कम. अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज माई प्रोग्राम. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम एंड हियर इज द रनिंग स्क्रीन. नाउ जस्ट चेक इट आउट स्टूडेंट, हेलो पाइथन. Now just see that ये hello python कितनी बार प्रिंट हो रहा है. Just check it out. If again I'm going to run this program, however this running has been stopped after some time, but still just find out कि इसका कितना ये चल रहा है. It is finite or infinite step. तो अगर हम यहाँ फोकस करें, आउटपुट को चेक करें, तो ये एक तरह का इनफाइनाइट स्टेप चल रहा है और उसके बाद एक रन टाइम पे एक एरर जनरेट हो गया है. इंटरनल कॉलिंग पे एक एरर जनरेट कर दिया है. क्लियर? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली कि इंटरनल कॉलिंग तो ठीक है, फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, लेकिन ऐसा इसमें क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी की तरफ ये मूव कर गया. सो मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टेप कैसे वर्क हुआ होगा. व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, माई इंटरप्रेटर विल गो फर्स्ट ऑन द स्टेप नंबर 1. जस्ट चेक द स्टेप नंबर 1. And what is it? Invoking the main function. Now step number 2 will be what? It will come to the main function. और main function पे क्या है students? Just check it out. Step number 3. And what is the step number 3? Invocation of the function compute.
then where it will go? It will go to the step number 4. Here we have the step number 4. Then we have step number 5, जिसमें क्या हो रहा है, हेलो पाइथन प्रिंट होगा वेरी फर्स्ट टाइम. क्लियर? देन इट विल गो टू द स्टेप नंबर 6. नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 6? जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर. स्टेप नंबर 6 क्या है? ये एक अगेन दैट इज अ फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, लेकिन ये अपने आप को कॉल कर रहा है. तो कहाँ ये जाएगा? देन अगेन इट विल गो इन द स्टेप नंबर 7. नाउ देन स्टेप नंबर 7 के बाद स्टेप नंबर 8, व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन? हेलो पाइथन. देन अगेन it will go to the step number 9, और 9 पे क्या है? अगेन इंटरनल कॉलिंग. then we have the step number 10, then step number 11, then step number 12, फिर दोबारा कॉल होगा ऊपर, and then we'll have the step number 13, and then we'll have the step number 14, and then we'll have the step number 15. now tell me one thing, मैं स्टेप को ऐड तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका एंड क्या है? what is the end of this process? देयर इज नो एंड. तो इंटरनल कॉलिंग एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो डेट मीन्स व्हाट? फंक्शन इज गोइंग टू रिपीट वन आफ्टर अनदर, बट एक स्टॉपेज होना चाहिए, बट देयर इज नो स्टॉपेज इन दिस प्रोग्राम राइट नाउ. इज इट क्लियर? हाउ एवर रन टाइम पे एक लिमिट के बाद इसका स्टॉप कर दिया गया ड्यू टू सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम, बट स्टिल यहाँ पे ये प्रोसेस इनफाइनाइट है. तो अगर ये इनफाइनाइट प्रोसेस है तो डेट मीन्स व्हाट? इंटरनल कॉलिंग सिस्टम फेल्स. तो इंटरनल कॉलिंग का मतलब ही क्या है अगर ये इनफाइनाइट चल रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? सो डेट मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल कॉलिंग इज गुड, दैट हम इन ईच एंड एवरी ऑफ द प्रोग्राम वी डू द एक्सटर्नल कॉलिंग, बट आई थिंक इट इज ऑफ नो यूज if we are going to apply the internal calling, because just see the effect over there. Now that is the effect. Now this effect can harm the system. Clear? तो इस स्टेप का बेसिकली कोई एक मीनिंग है ही नहीं. तो वाई देन टू डिस्कस दिस इंटरनल कॉलिंग? नाउ हेयर कम्स दिस प्रॉब्लम कि ये इंटरनल कॉलिंग क्या था. तो इंटरनल कॉलिंग में स्टूडेंट्स फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल किया. एक्सटर्नल कॉलिंग में वन मॉड्यूल कैन कॉल द अनदर मॉड्यूल, बट इंटरनल कॉलिंग में वन मॉड्यूल इटसेल्फ कॉल इटसेल्फ. बट द थिंग इज दैट ठीक है, वी आर मेकिंग द प्रोग्राम वेयर द सेम मॉड्यूल इज कॉलिंग इटसेल्फ, बट देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनिटी जनरेटेड ओवर देयर. तो ये प्रॉब्लम को रिमूव कैसे किया जाए, दैट इज द मेन इशू ओवर देयर. अगर इंटरनल कॉलिंग का मेथड कुछ होता है तो आई थिंक ये मेथड यूज में नहीं है. No one is going to use this particular method. So then what happens? Then to avoid this infinity process in the internal calling, अगर internal calling में infinity process को remove किया जाए, that means what? If internal calling will be removed in this one, then what will happen? In that particular case, what will happen then? We have the solution. So ये तो प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम से तो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग द इंटरनल कॉलिंग. सो इन दैट पर्टिकुलर केस देन व्हाट विल हैपन? वी शुड फाइंड वन सॉल्यूशन ओवर देयर, एंड देन द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? हियर वी हैव द रिकर्जन एज अ सॉल्यूशन. सो प्रॉब्लम आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इंटरनल कॉलिंग को अगर हम अप्लाई करें इन ए प्रोग्राम, सो अल्टीमेटली every time the infinity will be generated. So now how it can be possible that during the internal calling a function can perform the finite process? How it can be possible? तो वो possible तब होगा जब हम उस function पे recursion property को apply करेंगे. तो recursion is basically a property which we apply in the respective function, and what is the result? The result will be when that particular function is going to call itself, then in that case then infinity will be avoided and the function will confirm or will perform the finite task. तो internal calling का infinity stop करने के लिए we generally use recursion. So recursion is basically a type of function. एक ऐसा function होता है जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, लेकिन it must have the finite limit. Because infinite का there is no use in the program, that's why it generally use a finite limit. So here we have the definition about this recursion concept, and the definition is
द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक प्रोसेस ऐसा जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड अप टू फाइनाइट टाइम्स, क्लियर, इज कॉल्ड रिकर्जन। एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन, वो फंक्शन जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली द रिकर्जन इज अ प्रोसेस and how it can be done, it can be done by the recursive function only. So now we are going to make some program where these kind of tasks will be performed, at how the recursion can be performed over a recursive function. Is it clear? So student, I'm going to switch over the Python shell again, and now my I think this problem is clear to you. ये problem थी in the topic of internal and external calling. Now I'm going to start with my second topic, and that is recursion. So let's start this one, and for recursion concept we'll make one program of factorial of a given number. और स्टूडेंट्स फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर का मैंने एक प्रोग्राम एक यूट्यूब चैप्टर नंबर 1 के वीडियो में भी अपलोड किया था। सो बट दैट वाज फ्रॉम द लूप, कि वो लूप के थ्रू था, क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस प्रोग्राम बाय द रिकर्जन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर 5. सो हाउ इट विल परफॉर्म? इट विल परफॉर्म 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and the answer on the screen will come 120. ठीक है, तो ये फैक्टोरियल होता है। तो अब यहाँ पर जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द प्रीवियस प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इंटरनल कॉलिंग। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, इंटरनल कॉलिंग, दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी विल अप्लाई ओवर देयर। देन आवर सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी व्हाट? आवर सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी फंक्शन विद द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न। तो मैंने रिटर्न के बारे में यूट्यूब में एक वीडियो दिया था, इन माय पास्ट 2 वीडियोस में एक था जिसमें रिटर्निंग द सिंगल वैल्यू एंड रिटर्निंग द मल्टीपल वैल्यू के थ्रू हम इसको परफॉर्म कर रहे थे। तो दैट इज अगेन अ बेसिक विच वी नीड परफॉर्म द रिकर्सिव कॉलिंग और रिकर्सिव फंक्शन। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आई विल डू वन टास्क। मैं सबसे पहले फंक्शन कॉलिंग करता हूँ मेन। मैं रनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ कि प्रोग्राम रन कैसे करेगा। नाउ इफ दिस इज द रनिंग स्टेटमेंट ऑफ मेन, हेयर वी हैव द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है, एंड इनसाइड द मेन फंक्शन देन व्हाट एक्चुअली इज देयर? द नंबर इज, आई एम गोइंग टू फिक्स अ नंबर, सो n इक्वल्स टू 5। मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, तो आई एम गोइंग टू यूज द n इक्वल्स टू 5, एंड देन we have the number factorial, that is the function name, और I'm going to मैं इसको छोटा करता हूँ फंक्शन को, नेम fact. So fact, and then what I'm passing as an argument n, that's what I'm passing as an argument over there. So this is my module 2, ये module 2 है, ठीक है। एंड दिस वन इज व्हाट? दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग। और किस तरह की फंक्शन कॉलिंग है ये? अगर मैं इसको और डिटेल में चेक करूं तो ये एक एक्सटर्नल कॉलिंग है, क्लियर। नाउ व्हेन दिस फंक्शन विल बी इन्वोक्ड, फैक्ट फंक्शन, सो व्हाट विल हैपन देन? सो आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस फैक्ट फंक्शन। तो डिफाइन फैक्ट, एंड दिस फंक्शन विल रिसीव वन आर्ग्यूमेंट, दैट आर्ग्यूमेंट इज x, ठीक है। मतलब n की वैल्यू दैट इज 5 दैट विल बी गिवन टू x। नाउ x विल परफॉर्म द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, तो x परफॉर्म करेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है। स्टूडेंट, व्हाट शुड बी द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 1? एक नंबर 1 है, उसका फैक्टोरियल क्या होगा? 1। एंड व्हाट शुड बी द फैक्टोरियल ऑफ अनदर नंबर? इट इज एन एक्सेप्शन केस। तो मतलब क्या है कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, लेकिन नंबर्स अदर देन 1, positive numbers other than 1 will have some different result. So exception है, तो मैं exception को एक condition पे देता हूँ, that if n
इक्वल्स टू 1। अगर n की वैल्यू 1 होती है देन व्हाट विल हैपन देन इट विल रिटर्न व्हाट 1। तो ये रिटर्न 1 कर देगा, लेकिन किसको रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स? लेट्स चेक इट आउट। अगर हियर वी हैव द नंबर नम इक्वल्स टू फैक्ट, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ नम विल बी 1, बिकॉज फैक्ट से हमने n पास करा एंड द वैल्यू ऑफ n इज 1 सपोज दैट, so 1 will be given to x and only first time this condition will be satisfied, so 1 will be written back over here. So here we will have the answer on the screen. Print result is, what is result? Result is n num। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, exception case, that suppose that the value of n is not 1, then in that case else part should be proceeded. So here we have the else part. लेकिन else part में स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हमें फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। So now I am going to write one statement only, return x, sorry here x will come, return x multiply by fact x minus 1. Now just check it out students, what actually, just focus on this statement, fact x minus 1. What is fact in this program right now? Fact is the function name, and what we are passing to this function right now, x minus 1. So now just check it out, ये भी fact n है, ये external calling है, why? Because it has been declared in the another module, but this again is a function calling, और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है? इट इज बीइंग डिफाइंड अंडर द मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज द डिफाइंड फंक्शन फैक्ट। दैट मीन्स व्हाट? इट इज अगेन फंक्शन कॉलिंग, ये भी फंक्शन कॉलिंग है, लेकिन ये किस तरह की फंक्शन कॉलिंग है स्टूडेंट? दैट इज द इंटरनल कॉलिंग। क्लियर? सो ये एक इंटरनल कॉलिंग है। सो नाउ जस्ट फोकस ओवर हियर, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, दैट इज माय मॉड्यूल 1। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में अगर एल्स पार्ट वर्क करेगा तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दैट विल बी रिटर्न x इंटू फैक्ट x माइनस 1। क्लियर? सो नाउ हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क, दैट वी विल सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जब रिकर्जन सॉल्व होता है तो रिकर्जन इक्वेशन क्रिएट करता है, इक्वेशन टू सॉल्व एनी आंसर, एंड दीज ऑल इक्वेशन आर बीइंग मेंटेन अंडर अ मेमोरी, and this memory is known as the stack memory. stack memory होती है। clear? so stack memory क्या है students? stack memory में equations को 1 by 1 रखा जाता है so that it should be solved in the same order. clear? and what is a stack? basically it is a logical memory, and we'll have the upcoming chapters where we'll discuss in detail about that how to store the data in the stack memory, but right now your concern is about कि ये कैसे solve किया जाएगा। clear? बिकॉज द टॉपिक इज गोइंग ऑन रिकर्जन, और उसमें हम इंटरनल कॉलिंग कर रहे हैं बाय दिस स्टेटमेंट, वी आर डूइंग द इंटरनल कॉलिंग, बट नाउ द अप्रोच इज कि ये इंटरनल कॉलिंग इनफाइनाइट होती है या नहीं होती, दैट वी विल चेक इट हाउ इट इज गोइंग टू बी सॉल्व। सो हियर आई एम गोइंग टू स्विच ओवर द दिस स्टेटमेंट। जस्ट वेट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ। Okay, then that is a kind of stack memory we are having right now. Clear? Okay, now first thing is that stack memory में नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच होता है। So now just focus over here, मैं पैरेलली इसको रन करता हूँ। Suppose that very first time this num equals to fact n has done its work, तो n की वैल्यू x को मिली, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ? द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट? दैट विल बी 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक अ केस व्हेन द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 5। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो फैक्ट 5 पे वर्क करेगा। क्लियर? नाउ द स्टेटमेंट इज इफ x इक्वल्स टू 1, इज इट ट्रू राइट नाउ? x की वैल्यू 5 है अभी, मैं इसमें और मेंशन कर देता हूं कि x की वैल्यू 5 है। नाउ 5 इक्वल्स टू 1, ट्रू और फॉल्स?
दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो व्हाट विल हैपन देन, एल्स पार्ट विल वर्क. सो एल्स पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगा. एंड व्हाट इज एक्सप्रेशन राइट नाउ, x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस वन. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x राइट नाउ, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट x minus 1. So what should be the value of x minus 1 then, 4. 5 minus 1 4. तो ये अगर आप फोकस करें फैक्ट 4, ये फैक्ट 4 दोबारा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है और ये इंटरनल कॉलिंग है. दैट मीन्स व्हाट, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन फैक्ट, बट राइट नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ x वी आर पासिंग विल बी 4. नाउ जस्ट चेक इट आउट, द वैल्यू ऑफ x इज राइट नाउ 4. सो क्या इफ कंडीशन वर्क करेगा, नहीं करेगा. सो इन दैट केस एन एल्स फंक्शन विल वर्क. And here we have x into fact of x minus 1. So what should be the result over there? What is the value of x right now? 4 multiplied by fact x minus 1 कितना होगा स्टूडेंट? That will be 3. Again then what is going on? Function calling by passing a new value. ये internal calling है fact की और ये 3 को पास करने की बात कर रहा है. Now again that means what? Here we have again one more value. Here it is going to solve with the fact of 3. So fact of 3 के लिए students, now right now the value of x is 3. So this if condition again will not work, but we will have the else part, and else part may return x into fact of x minus 1. So what is the value of x right now? 3 multiply it by fact x minus 1 कितना होगा students? 3 minus 1 that is 2. Again then this fact 2 means what, कि ये दोबारा फंक्शन को कॉल करने की बात कर रहा है. Is it clear? That means what again? We are going to call that function fact again with the internal calling, and here we are passing the value as 2. Now the value of x is 2, then if condition again will be discarded, so else part will work. And what is the else part right now? Return x into fact of x minus 1. That means what? That means 2 multiply by fact of x minus 1. So x minus 1, 2 minus 1, that is 1. ठीक है. Then again, now again the internal calling. ये दोबारा से इंटरनल कॉलिंग है. एंड राइट नाउ वी आर पासिंग 1 टू द x वेरिएबल. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 राइट नाउ. सो हियर वी हैव अगेन व्हेन वी हैव कॉल्ड द फंक्शन फैक्ट विद द वैल्यू एज 1, देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट. नाउ दिस इफ पार्ट विल वर्क एंड व्हाट इट विल रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन 1. दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज 1 राइट नाउ. सो अगर आप फोकस करें अभी तक, जब हम बॉटम से टॉप चले, this internal calling of fact function has created 5 equations. Equation 1, 2, 3, 4, 5. Clear? But ये internal calling तो है, fact 4, fact 3, fact 2, fact 1. But ये जो internal calling है ये up to finite terms है, ये infinite नहीं गया. It was working up to finite. अगर इसको हम infinite चलाते तो कैसे चलता? अगर मैं लिखता है if x is not equals to 1, तो रिटर्न x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1 एल्स कंटिन्यू, तो ये इनफाइनाइट चल जाता है. लेकिन अभी हमने जब बॉटम से टॉप स्टैक मेमोरी में फॉलो किया, तो एट लास्ट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फैक्ट 1 एज 1. नाउ इट विल सॉल्व ऑल द रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन विद सम आंसर. सो नाउ दिस इक्वेशन फैक्ट 1 इज गिविंग द रिजल्ट एज 1. सो नाउ विल कम ओवर हियर, बॉटम अब टॉप से बॉटम सॉल्व होगा. 2 multiply by fact of 1. So now in the previous statement what was the value of fact of 1? That was 1. That means what is it will perform then? 2 into fact of 1 was 1. So 2 into 1 कितना होगा students? That will be 2. Then we'll have 3 into fact 2. 3 into fact 2 means what? 3 multiply by fact 2. Fact 2 की लास्ट उसमें वैल्यू कितनी है? 3 multiply 2 थी, 3 multiply by 2, that will be 6. Then the interpreter will come from in the next one, and that will perform 4 multiply by fact of 3. So now what is the value of fact of 3 right now? Just check it out. That is 6. So 4 into 6, that will be what? That will be 24. Then again we will have the fact of 5 to be solved. So now 5 multiply by what? What is the value of fact of 4 right now? That is 24. That will be 24. So 5 multiply by 4 कितना होगा? 5 into 24, that will be 120 at the last. So that means what? Fact of 5 is giving me the answer as 120 on the screen. Is it clear? So ये 120 एक रिजल्ट है जो लास्ट में आया, ठीक है. सो
सो स्टैक मेमोरी ने बॉटम से टॉप तक इक्वेशन को सॉल्व किया अप टू फाइनाइट टर्म, एंड देन it has came from top to bottom by solving the equation, and finally we are getting the 120 result at the last. ये 120 किसको मिलेगा? Listen, which calling statement has initially initiated this function fact? भाई fact of x minus 1 ने तो ये इन्वोक किया internal calling, लेकिन जब पूरा रिजल्ट जनरेट हो गया, that means what? This final answer done by the fact function will go where? That will go to the function num, to the variable num. Why? Because fact n ने पहली बार इसको इनिशिएट किया था. It has done the repetition by doing the internal calling, but whensoever the result has been generated, that result will be given to the variable num. So here we have result is num. So we'll check the answer, that what should be the answer on the screen. Some problem over there. Okay, I forgot to mention the colon over here. So now colon को mention करते हैं, and then we'll see what is the answer on the screen. Result is 120. Clear? So अगर आप इसमें इस प्रोग्राम को ध्यान से समझें, इस प्रोग्राम में हमने इंटरनल कॉलिंग ही करा, लेकिन that internal calling was up to finite term. How finite? Just check it out. It has solved up to 1. So by this statement ये finite perform किया गया. Clear? So now the thing is that इस फंक्शन ने इंटरनल कॉलिंग तो करा, लेकिन एक फाइनाइट टर्म्स तक करा, एंड इन दैट केस देन दिस काइंड ऑफ फंक्शन आर नोन एज रिकर्सिव फंक्शंस. Those functions which perform the internal calling of itself, but that will be up to the finite terms, that is known as a recursive calling. So I think आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि रिकर्सिव कॉलिंग कैसे परफॉर्म करता है. क्लियर? बट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट it always maintain a stack to perform all the equations, and then after getting the result at the top side, and then it is going to solve from top to bottom and getting the final result, and that will be given to the external calling statement from where it has been called, from where it has been initiated first. So this is known as the recursive function. So I am going back again with my presentation mode. तो यहाँ पे प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन अपने आपको कॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट अप टू द फाइनाइट टाइम्स. एंड इन दिस प्रोग्राम ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द फाइनाइट टर्म्स, कैसे वो जनरेट करेगा, इज कॉल्ड रिकर्जन, एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज द रिकर्सिव फंक्शन. मतलब वो फंक्शन जो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, दैट इंटरनल कॉलिंग अप टू द फाइनाइट टर्म, एंड दैट फंक्शन विल बी कंसिडर्ड एज द रिकर्सिव फंक्शन. सो इन माई लास्ट प्रोग्राम दैट फैक्ट फंक्शन वॉज द रिकर्सिव फंक्शन. तो अगर आप फोकस करें इन वन थिंग, दैट जस्ट ऑब्जर्व दिस प्रोग्राम अगेन. इज दिस फंक्शन वाज डूइंग द रिपीटेशन? जस्ट चेक द मेमोरी. यस, इट इज इन द रिपीटेशन. कितनी बार रिपीटेड किया? 5 टाइम, क्योंकि द वैल्यू ऑफ n वाज 5. अगर मैं वैल्यू ऑफ n विल बी 10 करूंगा तो 10 रिपीटेशन करेगा. वैल्यू ऑफ n विल बी n, तो इट विल परफॉर्म n रिपीटेशन. तो ये रिपीटेशन करता है. नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज, विच alternate method in the programming of Python perform repetition? I think loop repeat करता है. So loop क्या होता है? iteration होता है. मतलब जब कोई भी एक वेरिएबल अपने आप को रिपीट करे फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेशन अप टू द फाइनाइट टर्म, या जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तो इन दैट केस देन वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट एज अ इटरेशन. तो इटरेशन भी रिपीटेशन है, लेकिन इटरेशन किसका रिपीटेशन करता है? दैट रिपीट्स अ वेरिएबल फ्रॉम आई फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 0 to n. लेकिन ये भी एक तरह का रिपीटेशन है भाई. रिपीटेशन व्हाट? रिपीटेशन ऑफ कॉलिंग द फंक्शन. ये भी तो वही है. तो इन दैट केस देन दिस इज नोन एज रिकर्जन. बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि बोथ डू द रिपीटेशन ऑफ समथिंग. But now we have one concept that what is the difference between the iteration and the recursion in detail. Common thing is that कि दोनों repetition perform करेंगे, लेकिन there are various uncommon factors between these two ones. So I'm going to switch over the presentation more then, and then we'll see that what is the difference between the iteration and the recursion. Now just check it out. First of all, iteration explicitly uses a repetition structure. मतलब the programmer will decide that how the iteration will go on, but recursion never decided by the programmer.
रिकर्जन अचीव्स रिपीटेशन थ्रू द रिपीटेड कॉलिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन अपने आप कॉलिंग करके रिपीटेशन परफॉर्म करता है. वी आर नॉट गिविंग एनी कोड राइट नाउ for that, but when I'm going to define the iteration I'll use for I in range 1 10 plus 1. that means what, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि 10 बार इसको चलाएंगे. रिकर्सन में क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रिपीटेड फंक्शन कॉलिंग इट विल वर्क. सो दैट इज नॉट अप टू द प्रोग्रामर हैंड कि मैं इसको व्हाट विल बी द फाइनाइट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकर्सन. दैट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग. सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट इज इटरेशन टर्मिनेट्स व्हेन द लूप कंटिन्यूएशन. भाई इटरेशन कब टर्मिनेट्स करता है, जब लूप खत्म होता है. लेकिन रिकर्जन कब टर्मिनेट करता है, जब व्हेन अ बेस केस इज रिकॉग्नाइज्ड. आई एम गोइंग टू स्विच ओवर देयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस केस, जस्ट चेक इट आउट. स्टूडेंट, दैट इज द बेस केस, मतलब हमने बेस, दैट वाज आवर बेस स्टेटमेंट, इसको सॉल्व किया तो ये 2 स्टेप में सॉल्व हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये कुछ ऐसे सॉल्व हुआ. तो दैट इज माई बेस केस. तो जब तक बेस केस नहीं मिलेगा, जब तक ये लास्ट इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, और द वेरी फर्स्ट इक्वेशन विल नॉट बी सॉल्व, टिल देन द स्टैक, टिल देन द रिकर्जन विल स्टार्ट इन द कंटिन्यूएशन प्रोसेस. कंटिन्यू करता रहेगा. So that is a fact about this one. Now we have this one, the third one. Iteration keeps modifying the counter until the loop continuation condition fails. I variable in the loop. For I in range 1, 10 का मतलब क्या है, I को 1 से लेकर 10 तक हम रन करेंगे. तो जब तक I की वैल्यू 10 तक नहीं हो पाती है, the loop will do in the continuation. But when the value of I will be more than 10, then what will happen? Automatically the loop or the iteration get fails over there. बट इन रिकर्जन बेसिकली व्हाट इट डू, ये जब तक बेस केस नहीं मिलता है तो चलता रहेगा. डैट मीन्स व्हाट, इटरेशन का जो लिमिट है दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल. फॉर आई इन रेंज में आई इज द वेरिएबल. बट जो रिकर्जन का जो लिमिट है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द बेस केस. तो जब तक उसको बेस केस नहीं मिलता है वो वर्क करेगा. क्लियर. देन नेक्स्ट वन इज द iteration normally occurs within a loop, so extra memory assigned is omitted. तो iteration को हम loop के थ्रू परफॉर्म करते हैं. तो there is only one variable I चलता रहेगा. तो I की मेमोरी 2 बाइट्स की होती है, सॉरी 4 बाइट्स की होती है इन द पाइथन प्रोग्रामिंग. तो 4 बाइट्स में हमारा प्रोसेस चल रहा है. लेकिन अगर आप ध्यान दें, इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस वन, रिकर्जन इज व्हाट, रिकर्जन causes another copy of the function and hence a considerable memory space is occupied. अब just focus over here in this particular memory, stack memory. अगर आप stack memory पे फोकस करें तो यहाँ पर जब तक 120 हमें नहीं मिलता, these all memory will be allocated for this data. First data is 1, second data is 2, third data is 6, then 24 and then 120. मतलब अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन या कोई भी एक ब्लॉक में कुछ फेलियर आ जाएगा, we will never get the answer 120 at the last. That means what? These all equations are interdependent on each other until the base case is achieved 120. ठीक है. तो उसके लिए 120 को अप्रोच करने के लिए हमें इन लोकेशंस पे डेटा को स्टोर करना पड़ेगा. और डेटा को स्टोर करने का मतलब है मोर मेमोरी कंजम्पशन विल बी देयर. जस्ट गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली. इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी कंजम्पशन होगा. लेकिन जब हम लूप को क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो लूप को क्रिएट करने का मतलब क्या है, व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट द लूप, सो व्हेन लूप जनरली क्रिएटेड, तो लूप में केवल वन वेरिएबल विल परफॉर्म ऑल द टास्क फ्रॉम इनिशियलाइजेशन टू द एंड. तो वन वेरिएबल मीन्स वन डेटा वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल. बट इस रिकर्जन में एवरी एक्सप्रेशन हैज़ टू maintain the record until the base case is not going to be achieved at the last. Yeah, clear. Now the next one is it reduces the processor operating time. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप इटरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक सिंगल गो में आई की वैल्यू 1 से 10 तक में हमारा वर्क पूरा हो जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिकर्जन क्या है, इट इंक्रीजेज द CPU प्रोसेसिंग टाइम. प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाता है. व्हाई? जस्ट फोकस ओवर हियर. अगेन वी हैव दिस एग्जांपल. भाई जस्ट चेक द प्रोसेसिंग टाइम. पहले प्रोसेस क्या था, बॉटम से टॉप तक. द नेक्स्ट प्रोसेस वाज टॉप टू बॉटम. जस्ट इमेजिन वन थिंग कि एक फैक्टोरियल ऑफ 5 को कैलकुलेट करने के लिए दिस स्टैक इज परफॉर्मिंग अ 2-step प्रोसेस वेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू मेंटेन द रिपीटेशन अप टू द फाइनाइट टर्म फ्रॉम बॉटम टू टॉप.
एंड देन द सेकंड स्टेप में जो सेकंड सब प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू मेंटेन ऑल द रिजल्ट एंड फाइनली गेटिंग द बेस केस रिजल्ट एट द लास्ट. तो इतना लंबा प्रोसेस ये चल रहा है, तो ये टू वे प्रोसेस है. दैट्स वाई इट विल कंज्यूम मोर सीपीयू टाइम. सीपीयू का टाइम में ज़्यादा कंज्यूम करेगा. सीपीयू मीन्स व्हाट, ब्रेन का जो प्रोसेसिंग टाइम है, कंप्यूटर के ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम है, इट विल कंज्यूम मोर. क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वन. सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स दैट हाउ द difference can be checked between iteration and recursion. Only one thing is common, both do the repetition, but the another things are, these are on the screen right now. Clear? So this is all about the recursion concept, and that is an important property, or we can say the integral property of the function. कि function recursive कब बनेगा? Function recursive तब बनेगा जब वो अपने आप को ही कॉल करेगा, लेकिन उसकी कॉलिंग कब तक होगी? अप टू द फाइनाइट टाइम, अंटिल द बेस केस इज गोइंग टू बी रिसीव्ड, तब तक वो वर्क करेगा. क्लियर? सो स्टूडेंट, एट द एंड आई एम गिविंग यू वन एक्टिविटी, एंड दिस एक्टिविटी इज दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर यूजिंग द रिकर्जन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लूप, तो सिंपल है लूप में, फॉर आई इन रेंज 1,51 एंड देन +1 विल बी द इंक्रीमेंट ऑर्डर, एंड देन प्रिंट आई में फर्स्ट 50 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट द रिकर्जन कॉन्सेप्ट, तो रिकर्जन के थ्रू ये भी रिपीटेशन तो परफॉर्म कर रहा है 1 से लेकर 50 तक, मीन्स व्हाट, ये भी रिपीटेशन है, बट दैट हैज़ टू बी डन बाय द रिकर्जन कॉन्सेप्ट. क्लियर? सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट दिस वन. सो आई होप कि आपको रिकर्जन क्लियर होगा. क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.